خطاب ہوئے گا اور انہوں تو بعد شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب دا خطاب ہوئے گا. تو میں حضرت شیر ربانی حافظ عبدالعلیم یزدانی صاحب دے خطاب تو قبل چند منٹاں واسطے دعوت خطاب دینا. محترم جناب حافظ ثاقب سرور ساقی صاحب ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فور ضلع جنگ حافظ ثاقب سرور ساقی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی. اور میں انقلاب پسندوں کی اس قبیل سے ہوں جو حق پہ ڈٹ گیا، اس لشکر قلیل سے ہوں. میں ایسے ہی دستو گریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں دلیل سے ہوں. ہر قسم کی حمد و ثنا اس خالق کائنات اللہ احکم الحاکمین کے لیے. درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام دین، امام المجاہدین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. دوستوں اور عزیز ساتھیوں، مشن شہدائے اہل حدیث کانفرنس میں آپ بڑی کثیر تعداد سے جلوہ گر ہو اور میرے بڑے ہی پیارے بھائی مجاہد اسلام، خطیب اسلام جناب مولانا ارشاد الحق عصری صاحب کے حکم پر آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا موقع ملا ہے. اور میرے بعد اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اسٹیج پر پرگردہ اگوش ولایت خطیب پاکستان، بابا تبلیغ جناب صاحبزادہ حافظ عبدالعلیم صاحب یزدانی، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث جلوہ افروز ہیں. میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے ایک پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، مشن شہدائے اہل حدیث کانفرنس میں تشریف لانے والوں، یہاں سے ایک پیغام لے کے جانا ہے، ایک دعوت لے کے جانی ہے، ایک میسیج لے کے جانا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ مشن شہدائے اہل حدیث کا مشن کیا تھا، پیغام کیا تھا، میسیج کیا تھا. انہوں نے جو چھریے او خنجر اپنے سینوں پہ کھائے، ان کا مقصد کیا تھا. ان شہداء نے اپنی جوانی بمبوں کے سامنے پیش کی، اس کا مقصد کیا تھا. غور کرنا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ آواز ایسی ہے، یہ پیغام ایسا ہے، یہ کلمہ ایسا ہے جس نے بھی اس سرزمین پہ لگایا، لوگوں نے اس کو کبھی آگ کے سپرد کرنے کی کوشش کی، کبھی اس کے سر پہ آرے کو رکھ کے چلایا، کبھی اس کے جسم پہ پتھروں کو برسایا، کبھی اس کے بدن کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا، کبھی ان کو جس نے ربنا اللہ کی آواز کو بلند کیا تختہ دار پہ لٹکایا، پسے دیوار زندان پھینک دیا اور دبانا چاہا، پر برسوں بیت گئے، ہزاروں سال گزر گئے، پر ربنا اللہ کی صدا لگانے والے کھنجر کھا کے
जुल्म और सितम बर्दाश्त करके, जेलों में जाके, हथकड़ियाँ पहन के, आग के अंदर जाकर फिर भी इस सदा को लगाते रहे, कोड़े जिस्म पे खाए पर रब की तौहीद को बुलंद किया। आज इस गांव में, इस गांव की सरजमीन पे मिशन शुहदा का, मिशन इस्लाम का पैगाम पहुंच चुका है और गलियां गलियां, नगर नगर, शहर शहर ये पैगाम जाएगा। और वो पैगाम कौन सा है? इन्नल्लज़ीना कालू इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, बर्गियां बनाने वाला अल्लाह है, औलादें देने वाला अल्लाह है, बीमारी देने वाला अल्लाह है, बीमारियों से निकालने वाला अल्लाह है, इस दुनिया में सरसब्ज और चांद लगाने वाला अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं। वही तौहीद वाला, वही असमत वाला, वही शान वाला, वही रबूबियत वाला, उसकी तौहीद का डंडा ही बजेगा। यही पैगाम है। फिर कुरान कहता है अगर तू इस पे डट गया, अगर इस पे पक्का हो गया, अगर इस पे इस पर तू मजबूत हो गया, फिर सुम्मस्तकामु ततनस्सलु अलैहिमुल मलाइका, आजमाइशें आएंगी, दुख आएंगे, मुसीबतें आएंगी, गोलियों की पुछाड़ें आएंगी, जेलों में जाना पड़ेगा, बच्चे ज़िबा करवाने पड़ेंगे, पर सुम्मस्तकामु, अगर तू इस्तकामत इख्तियार कर गया, अगर डट गया, फिर ततनस्सलु अलैहिमुल मलाइका अल्लाह तखाफू, अल्लाह के मलाइका आएंगे और आकर कहेंगे खौफ न खा, डर न कर, हुक्मरानों से न डर, इनकी हथकड़ियों से न डर, हक की आवाज को बुलंद कर, तेरे लिए रब ने जन्नत में एक इनाम बना दिया है। जन्नत में तेरा घर बना दिया है। हजरात, उस घर के लिए, उस घर की असमत के लिए, उस घर को पाने के लिए मैंने फिर देखा आज से 28 साल कबल पहले किला लक्ष्मण की सरजमीन पे, किला लक्ष्मण के सीने पे खड़े होकर, इसी सोमवार का दिन था, रात के 11:30 बजे खतीब मिल्लत आए, एक इस्लाम का मुजाहिद आया, इस्लाम का सफीर आया, उसने आके आवाज को लगाया, इस सदा को लगाया, इस पैगाम को लगाया, और वो पैगाम दुनिया को सुना रहा था, हक का पैगाम दे रहा था कि उसने अपनी जान का नसराना देकर मुझे पैगाम ये दिया है। और मैं एहसान इलाही ज़हीर का रूहानी फरसंद होने की हैसियत से इस बात पे इफ्तिखार हूँ, इस बात पे मुसर्रत करता हूँ कि मेरी क़यादत ने, मेरे लीडर ने, मेरे रहबर ने, मेरे पेशवा ने किसी बुजुर्ग के सामने अपने सर को नहीं झुकाया, किसी सियासत के लिए अपनी जान को नहीं दिया, अपनी चुदराहट के लिए जान को नहीं दिया, उसने जान का नजराना पेश किया है इस्लाम के लिए और हमें पैगाम दिया है डट जाना, इस पे काबू हो जाना, मुश्किलें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, इसी मुसीबतों के तहत आजमाइशें आती रही। ये मेरे उलमा, ये मेरे बुजुर्ग, ये मेरे कायदीन रात दिन अपनी जान को इस हथेली पे रखकर गलियां गलियां जाकर, गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर आज किला इबिया सिंह में इस पैगाम को देने आया है। ये शुहदा का साथी है और पैगाम ये देने आया है। हम इस्लाम की बालादस्ती के लिए हर मैदान में आएंगे और तुम्हें लड़ाएंगे और तुम्हें इकट्ठा करेंगे इस्लाम के लिए। फिर मैं पैगाम छोड़ना चाहता हूँ, दावत देना चाहता हूँ कि मेरे नौजवानों और यूथ फोर्स के शहीदों और शहबाजों, एक बात को अपने सीने में महफूज कर लो, हर आदमी को दावत दो, हर मैसेज दो, हर आने वाले को, हर बेगाने को, हर अपने को, हर पराये को ये दावत दो कि अहले हदीस के दो असूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और अहले हदीस की आवाज़ है कुरान और सुन्नत का नफास। हम इस मुल्क में लाएंगे, इस्लाम का दस्तूर लाएंगे, हम इस मुल्क को बनाएंगे, इस्लामी ट्रस्ट बनाएंगे, इस्लामी रियासत बनाएंगे, और उसकी जिद्दोजहद करोगे। क्या आप मेरे साथ वादा करते हो कि इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाओगे? हाथों को बुलंद कर कर मेरे साथ वादा करो कि अहले हदीस की आवाज़
कुरान और सुन्नत का नफास हम गलियां गलियां पहुंचाएंगे, नगर नगर पहुंचाएंगे, लोगों को मैसेज सुनाएंगे। हमारी क़यादत ने भी इस मैसेज को पहुंचाया है। हम भी आगे अपनी जान की परवाह किए बगैर, मालो सर का लालच किए बगैर लोगों तक हक की बात देंगे, हक का पैगाम देंगे, हक का मैसेज देंगे, हक की तरफ बुलाएंगे। मैं इन्हीं अल्फाज पे इत्तफाक ख़त्म करता हूँ। शेर रब्बानी साहब स्टेज पर मौजूद हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, पर आपसे मैसेज लेना चाहता हूँ, आपसे फिर वादा लेना चाहता हूँ। दुनिया को ये पैगाम बताना है, दुनिया को समझाना है। लोग हमें बड़ा कुछ कहते हैं, लोग हमें कादियानी कहते हैं, लोग इस्लाम के मुखालिफ कहते हैं। उनकी वजह क्या है? ये सिर्फ तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी सुस्ती है। और जिस चादर को तुमने अपने सर पे ओढ़ा है उसको उतार दो, मैदान में आओ, अमल की जिंदगी में तो बस से सफर शुरू करो और लोगों को बताओ हमारा असूल है कुरान और हदीस की आवाज देना, कुरान का मैसेज देना, हदीस का मैसेज देना। यही अहले हदीस की आवाज है। जब तुम्हारा ये मिशन बन जाएगा, ये पैगाम बन जाएगा, ये मकसद बन जाएगा, ये आरज़ू बन जाएगी, जब जीने का ये मकसद होगा, फिर देखना जिंदगी में बहारें कैसे आती है। 28 बरस गुजरने के बाद एहसान इलाही ज़हीर हर बच्चे के दिल में जिंदा है। क़यामत आ सकती है, एहसान इलाही ज़हीर के नाम गूंजता रहेगा, हबीबुर रहमान का नाम की सदाएं लगती रहेंगी, आवाज़ें उठती रहेंगी, अवाम उनका नाम का तराना गाती रहेगी। उसका मकसद है कि वो इस्लाम की आप यारी करके गया है, इस्लाम का मैसेज दे के गया है, इस्लाम का पैगाम पहुंचा के गया है। आओ तुम भी मेरे साथ वादा करो, इस्लाम का मैसेज पहुंचाओगे? हाथ उठा के, हाथों को बुलंद करके इस्लाम का मैसेज पहुंचाओगे, दावत को पहुंचाओगे, अपने बेगानों तक पैगाम दोगे। अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासर व मालिना।